Hello everyone, my name is Upendra Verma and welcome to the Infinity Learn by the Sri Chaitanya. Okay, so in this session we will discuss some questions. Okay, so start with the first question. The first question is if 50 vernier division are equals to 49 main scale division divisions of traveling microscope and one smallest reading of the main scale is 0.5 mm. So one main scale division is 0.5 mm. The vernier constant of the traveling microscope is. So we know कि 50 vernier scale division is equals to 49 main scale division. Okay, ठीक है. So one vernier scale division equals to 49 divided by 50 main scale division. When it comes to least count, so one main scale division minus one vernier scale division, that is 1 MSD minus one vernier scale division. So 49 divided by 50 main scale division. So common MSD. So 1 MSD minus 50 minus 49 1 by 50. ठीक है. अब देखो 1 MSD that means 0.1. So 1 by 2 mm into 1 by 50 mm. So 1 upon 100. 1 upon 100 that means 0.01 mm. So option D is the correct one. Move to the next question. That is a block of mass 1 kg is pushed up a surface inclined to the horizontal at an angle of the 60. ये कितना है 60 डिग्री. So इसको draw करो एक, because this is a mg. When this mg is break into the two parts, so mg cos theta, mg sin theta. Simple है. This is normal. So what is the friction force? We know the friction force, that is mu into normal force. So mu that is 0. कितना है इसका 0.1. 0.1 into normal force. Normal force is, यहाँ पे normal force कितना है आप देखो. Normal force is mg cos theta. mg cos theta. So m की वैल्यू 1 है, g की वैल्यू 10 है, cos 60 डिग्री, that means cos 60 equals to 1 by 2. So cancel these two 5. तो कितना हो गया 0.5 Newton frictional force. Okay. Now the work done equals to force into displacement. So force and displacement. Force is acting in downward direction because our friction force always in opposite direction. और यहाँ पर क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट अपर डायरेक्शन में, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा बिकॉज 180 डिग्री. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहा है, तो इसको माइनस अभी नहीं लेते हैं. ठीक है, कोई बात नहीं. तो इंक्लाइंड एट होरिजन, ठीक है, 10 मीटर. सो फोर्स इज 0.5 इंटू 10. कितना हो जाएगा आपका 5 जूल. दैट इज इन माइनस. ओके, तो इन टॉक ऑफ मैग्नीट्यूड तो ये हो जाएगा ऑप्शन 2 is the correct one. For the photoelectric effect, the maximum kinetic energy of the photoelectrons is plotted against a frequency V nu of the incident photons as shown in the figure. The slope of the graph, this slope theta gives the graph. अब देखो, we know that in photoelectric kinetic energy, maximum kinetic energy H nu minus phi.
सिंपल है. And that is kinetic energy, that is nu. So we know that y equals to one formula, that is a straight line passing through a line, not origin. So y equals to m x plus c. So this is minus c. Kinetic energy is y-axis. Kinetic energy is y-axis. X is, this is x. This is y. So this is nu. Okay. So what is m? Here m is tan theta. That is slope. तो आपका स्लोप कितना हो जाएगा? m. और यहाँ पे m कितना है? Equals to h. So slope, that is tan theta equals to h. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? नो. फंक्शन वर्क फंक्शन ऑफ? नो. रेशियो ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट टू द? नो. प्लैंक कांस्टेंट. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन. ठीक है, सिंपल है. A block of ice at -10 degree centigrade. So -10 degree centigrade क्या था? ये यहाँ पे आइस था. ठीक है, उसके बाद स्लोली हीटेड एंड कन्वर्टेड टू 100 डिग्री 100 स्टीम ऑफ. अब देखो -10 डिग्री आइस है, उसके बाद क्या हीट दोगे? when you apply some heat, the temperature of the ice will raise. So कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस. अब इस आइस को अगेन फर्दर अप्लाइंग हीट, it will convert it into the 0 degree of centigrade water. Again heat up apply, so 100 degree centigrade water. Again heat apply, 100 degree centigrade steam. ठीक है, steam, yes steam, yes steam. 1 2 3 4 process. First, when temperature increases -10 to temperature increases, first temperature is increases. Again ice to water, when phase is changed, temperature remains constant. temperature उसमें change नहीं होता है. उसमें क्या होता है? Q equals to m into L, latent heat of fusion and mass of the ice. So ये temperature क्या हो रहेगा? Constant. ठीक है. Again 0 degree water to 100 degree, temperature will raise. And 100 degree water to steam, again Q equals to heat m into latent heat of vaporization. तो इसमें भी टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट. एक बार टेम्परेचर इंक्रीज, अगेन कांस्टेंट, अगेन इंक्रीज एंड अगेन कांस्टेंट. इंक्रीज कांस्टेंट. This is not correct because heat supplied is 0. No. So here temperature increase and constant, again increase, again constant. So option D, option 4 is the correct one. देखो क्योंकि यहाँ पे heat supplied is 0, continuous heat supply हो रहा है, तो 0 क्यों? No. Increasing, constant, increasing, again constant, again increasing. तो ये यहीं पे end हो गया. So this is also not correct. Option 4 is the correct one. In a nuclear fusion reaction of an isotope of mass m, the mass of, this is mass m. Okay, 3 similar daughter nuclei of the same mass are formed. m by 3, m by 3, m by 3. ठीक है. The speed of the daughter nuclei, 1 minute. Okay, ठीक है, recording. Speed of the daughter nuclei in term of some mass defect. Okay, so mass defect क्या होता है? Suppose we know that mass defect delta m equals to mass of the atom minus mass of the nucleons. Okay, mass of the nucleons. तो जो mass होता है, that is converted into the energy by E equals to mc square, and this mass is mass defect. ठीक है. एक्चुअल मास ऑफ द एटम इज डिफरेंट. थोड़ा क्या होगा?
डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब मास की बात करते हो तो mc² एंड दिस इज हैव सम काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3 into, यहाँ पे 3 डॉटर्स न्यूक्लियाई हैं, तो 3 into हाफ m/3 हाफ m v² इक्वल्स टू डेल्टा m मास डिफेक्ट इंटू c²। अब देखो कैंसिल, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका कितना होगा v² इक्वल्स टू डेल्टा m मास डिफेक्ट c² डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पे हो जाएगा मास m and this is 2. So from here velocity equals to under root 2 delta m c² upon capital M. So c under root 2 delta m divided by capital M. So option C is the correct one. Simple है, because the mass of atom is different from the mass of the nucleons. उसमें mass defect होता है, तो वो मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका एनर्जी में। ठीक है, choose the correct statement for the process of A and B as shown in the figure. So PV diagrams, in PV diagram we know two equations. One that is PV to the power 1 or dash equals to constant for the process B, and PV equals to K, that is, so PV equals to nRT. This is आइडियल गैस इक्वेशन। ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है आपका। अब इसमें अगर टेम्परेचर आप कांस्टेंट करते हो, सो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, वी नो दिस वेरी सिंपल, वी नो वेरी वेल। अब देखो क्या, वन मोर इक्वेशन, वी नो एडियाबेटिक प्रोसेस। व्हाई? बिकॉज दिस स्लोप्स आर नॉट स्ट्रेट, कर्विलिनियर। तो इसमें क्या होता है, PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। दिस इज अ एडियाबेटिक प्रोसेस, दिस इज isothermal process. When you differentiate these two, so PV upon dP upon dV equals to, एडियाबेटिक में आपको मिलता है माइनस ऑफ गामा P अपॉन V, वेयर dP अपॉन dV फॉर आइसोथर्मल इज माइनस P अपॉन V। सो इसमें क्या होता है कि जो स्लोप होता है आपका एडियाबेटिक का, वो स्टीपर होता है। सो दिस इज अ एडियाबेटिक, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इसका जो स्लोप होता है एडियाबैटिक का, वो स्टीपर होता है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस। सो ये वाला जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा आपका, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, ये क्या होगा आपका आइसोथर्मल। तो ऑप्शन यहाँ पे एक ही मैच हो रहा है कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दिस इज isothermal process, and P टू पावर गामा -1 and T2 टू पावर गामा। तो ये आप जब इसको कन्वर्ट करोगे, PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, सो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV इक्वल्स टू nRT। सो एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर आप V को रिमूव करते हो यहाँ पर, सो क्या हो जाएगा, V की वैल्यू T अपॉन P। So when you put the value of P into V to the power T upon P to the power gamma, that is P to the power gamma -1 into P equals to nRT, so V equals to T upon P, T upon P। so ये आपका हो जाएगा माइनस गामा +1 अपॉन
इंटू T2 गामा। तो इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो ऑप्शन आपका थर्ड वन इज द करेक्ट वन, बिकॉज इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा, T2 गामा नीचे चला जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी गामा -1। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन। एक और क्वेश्चन है आपका, यहाँ देखो एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth orbit. So suppose this is the nucleus and so many electrons revolve around the nucleus. So nth बोहर ऑर्बिटल की बात कर रहा है। so nth ऑर्बिटल में आपको क्या फाइंड करना, मैग्नेटिक मोमेंट, and we know that magnetic moment equals to current into area। ठीक है, so first of all we need to find out current, and the radius of nth orbit is 0.53 into, we need to learn this formula, n square upon z, and velocity equals to 1 upon 137 into z upon n। ये हमारा क्या है, दो इक्वेशन फॉर्मूलेस हैं, वी नीड टू लर्न दिस टू फॉर्मूला। अब देखो यहाँ से करंट क्या होता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है किसी ऑर्बिट में तो स्पीड इसकी पता है। सो करंट इज dq upon dt। so dq means electron and time equals to 2 pi r divided by velocity। so time equals to 2 pi r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो 0.53। सो ये कांस्टेंट हो गया आपका। सो कांस्टेंट इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड डिवाइडेड बाई, ये भी एक कांस्टेंट हो गया। सो ओवरऑल दिस इज द कांस्टेंट, सो जेड अपॉन n। तो आपका हो गया n क्यूब अपॉन जेड, दैट इज कांस्टेंट। ये होगा आपका वैल्यू t। सो करंट इक्वल्स टू E अपॉन n क्यूब अपॉन, सॉरी यहाँ पे जेड स्क्वायर। This is the current value of the current. Now magnetic moment M equals to I into area. So E Z square upon N cube constant into pi r square r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे n स्क्वायर। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा n टू द पावर 4 अपॉन जेड स्क्वायर। so z square cancel, n cube, so n to the power m। so magnetic moment is constant something and n। so magnetic moment is directly proportional to the n। तो n to the power x, so n to the power यहाँ पे क्या है, सिर्फ सिंगल n है, तो n to the power कितना है 1 है। ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। one more formula, an alternating voltage Vt is equals to 2 to 0 sin 100 pi t। ठीक है, ये साइनोसाइडल वेव है आपका अल्टरनेटिंग करंट का, अप्लाइड टू अ प्योरली रेजिस्टिव ऑफ लोड ऑफ द 50 ओम। द टाइम टेकन ऑफ द करंट रेज टू फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक सपोज I1 कितना हाफ ऑफ द पीक। सो सपोज दिस इज I1 टू I0 अपॉन 2, और कहाँ तक पहुंचना है इसको, पीक वैल्यू तक। सो I2 कितना हो जाएगा I0। अब यहाँ पे देखो प्योरली रेजिस्टिव है, इसमें कोई इंडक्टर और कैपेसिटर इंक्लूड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट वी नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल द करंट। सो करंट इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR। सो I की वैल्यू आपका हो जाएगा I इक्वल्स टू 220 डिवाइडेड बाई 50 इंटू साइन
ऑफ 100 पाई इंटू टी। सो इसको आप डिवाइड करोगे तो 0 0 कैंसिल, 4.4 साइन 100 पाई इंटू टी। दिस इज द करंट इक्वेशन. Now, first of all, find out T1 time to reach I naught by 2. So I naught, that means ये अगर I है, this is suppose I naught, ये हमारा एक्चुअल इक्वेशन आ गया. सो I की वैल्यू I naught by 2 और ये हो गया I naught साइन 100 इंटू टी. सो कैंसिल करोगे सो 1/2 कितना हो जाएगा T1. सपोज दिस इज टाइम T1 टू रीच I naught by 2. सो T1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी T1 इंटू 100 पाई. 100 पाई हाफ कितनी वैल्यू होती है, साइन ऑफ पाई बाई 6. साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2. सो कैंसिल पाई पाई. T1 इक्वल्स टू 1/600. नाउ फाइंड आउट T2 टाइम. सो now I2 equals to I naught sine of 100t. So T2 की वैल्यू, I2 की वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, I naught equals to I naught sine 100 into t. So cancel these two. अब देखो साइन 1 कितना होता है, π/2 90 डिग्री. π/2 इक्वल्स टू 100 into pi into t. सो कैंसिल दिस टू. सो टाइम T2 हो जाएगा आपका 1/200. अब देखो T2 T0/2 से I0/2 से I0 पहुंचने में कितना टाइम लगा, डेल्टा टाइम T इक्वल्स टू फाइनल टाइम कितना 1/200 माइनस 1/600. 1/100 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/6. अब देखो 6 माइनस 2 1/100 इंटू 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 का हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 12 3. तो 1/3 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 तो हो जाएगा आपका 3.33 इंटू 10 टू पावर माइनस 3. ये आपका हो जाएगा मिली सेकेंड. ये हो गया मिली और ये हो गया सेकेंड. तो 3.33 मिली सेकेंड. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. Another question. A block of mass m is placed on a surface having vertical cross section y equals to x square by 4. Equation number first. If the coefficient of the friction is mu equals to कितना 0.5, the maximum height above the ground at which the block can be placed without slipping. ठीक है, अगर इस तरह से कोई चीज है इंक्लाइन प्लेन तो आप देखते हो दिस इज थीटा. तो विदाउट स्लिपिंग का स्लीपिंग का कंडीशन क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू tan थीटा. जब आप इसको सॉल्व करोगे ऐसे करके इधर हो गया आपका mg साइन थीटा, ये हो गया mg कॉस्ट सॉरी mg cos थीटा, ये हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स. सो ये सब सॉल्व करोगे तो आपका मिलेगा म्यू इक्वल्स टू tan थीटा. अब यहाँ से डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन. सो dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dx इक्वल्स टू आपका क्या हो गया 1/4 पहले से था इंटू 2x. सो कैंसिल 2 कितना हो जाएगा x/2. सो dy बाई dx बोले तो क्या होगा आपका, दिस 2 इज tan थीटा. tan थीटा tan थीटा और इसी की वैल्यू कितनी होगी म्यू. म्यू की वैल्यू यहाँ पे कितना गिवन है 1/2. समझ में आई बात. तो 1/2 1/2. सो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1. तो x इक्वल्स टू 1 वैल्यू अगर आपको यहाँ पर आ गया
then put the value of x equals to 1 in this equation. ठीक है, because this dy by dx is the slope is आपका क्या है friction. So friction coefficient, so friction coefficient equals to tan theta. So x by 2 equals to 1 by 2. 0.5 is 1 by 2. Cancel these two. So x equals to 1. Put the value of x in y equation. So y equals to 1 square upon 4, that is 1 by 4 meter. So 1 by 4 is option A is the correct one. A beam of polarized light of intensity I naught is passed through a polaroid A. Suppose this is the polaroid A. This is polaroid A. Another one, suppose this is polaroid B. And this is the suppose light और बीम. ठीक है, और कितने एंगल पे है? एंगल इज 45. कितना है? 45. सो जब ये लाइट सपोज आई नॉट है इंटेंसिटी, तो यहां पर जाएगा तो ये कितना होगा एंगल? 45. सो आई नॉट cos ऑफ 45. सो आई नॉट 45 का वैल्यू 1/√2, दैट इज आई नॉट. ठीक है, अगेन जब यहाँ पे रीच करेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई नॉट बाई √2, ये पहले से था, इनटू कॉस कंपोनेंट. इसका कॉस कंपोनेंट कॉस ऑफ 45. देखो यहाँ पे आई डैश इक्वल्स टू आई नॉट बाई 45. यहाँ अगर बात करते हो आई डबल डैश की, तो ये किसकी है? आई डैश इनटू कॉस ऑफ 45. सो आई डैश की वैल्यू इटसेल्फ आई नॉट बाई 2. तो कितना हो जाएगा ये? 1/√2 इंटू 1/√2. तो कितना हो गया? 1/2 इंटू आई नॉट. So I naught upon root I naught upon 2. Option 3 is the correct one. Now come to the escape velocity of a body from Earth. 11.2 escape velocity. V escape velocity 11.2 meter per second, not meter, sorry, किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड. ठीक है, अब देखो, we know the formula when suppose this is the earth and this is suppose this is any planet, this is the object revolving around the earth surface. ठीक है, suppose the total energy, we know the total energy of a object revolving around the earth कितना होगा इसका? माइनस जी एम अपॉन 2r. ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है? if the radius of the planet 1/3 of the radius of the earth, see this is the radius, तो r की वैल्यू r e by third and mass of the 1/6, mass of the planet is mass of the earth divided by 6. the escape velocity from the planet is, अब उस planet की escape velocity find out करनी है. सो इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है, जब टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू, वी नीड टॉक होता तो पॉजिटिव एनर्जी, यहाँ नेगेटिव नहीं लेंगे. सो जी कैपिटल एम अपॉन 2r e इक्वल टू हाफ मास एम, सॉरी एम वी स्क्वायर. सो कैंसिल आउट दिस टू. सो v की वैल्यू जो आपका होता है अंडर रूट जी कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ कैपिटल एम अपॉन 2, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो सिर्फ क्या बचेगा? आर ई. समझ में आई बात? आर ई होगा. बट यहाँ पे देखो दूसरे प्लेनेट के लिए
सपोज दिस इज फॉर अर्थ, v डैश इक्वल्स टू, तो उसके लिए क्या होगा, जी एम अपॉन आर इक्वल्स टू, जी तो सबके लिए सेम होता है, जी सेम फॉर ऑल, सो एम ई डिवाइडेड बाई 6 अपॉन आर का आर बाई 3, सो 3 इंटू कितना हो जाएगा 2, सो जी एम अपॉन 2 आर ई रूट, तो 1/√2 इंटू कितना हो जाएगा, जी एम ई अपॉन आर ई, दैट इज इक्वल टू, अब देखो 1/√2 इंटू ये वाली वैल्यू पूरी कितनी है, v, इसके वेलोसिटी फॉर द अर्थ, तो कितना है 11.2, अब 11.2 इंटू अगर √2/2 करते हो आप, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर 2 हो जाएगा, तो 11.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये हो जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाई 0.6, सो 5.6 इंटू √2, 5.6 इंटू 1 मिनट, बैटरी लो, ओके, सो 1.6 इंटू √2 इंटू 1.6 इंटू √2 का 1.41, so when we multiply, so we will get the answer 7.9 answer. Option 4 is the correct one. अब देखो अब a particle of charge q mass m revolve in a circular radius r around an infinity long ये दो, just wait a minute, एक बार अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो, a radius r around a infinitely long, ये क्या है, infinite माइनस infinity, चार्ज ऑफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, देन टाइम पीरियड विल बी द गिवन एज, टाइम पीरियड क्या होगा, अब देखो सपोज एट अ रेडियस आर, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 2k लैम्डा अपॉन डी और आर, सो हियर इज आर, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज ई इक्वल्स टू के लैम्डा अपॉन डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये होता है आपका, अगर इस तरह से कोई फाइनाइट, नॉट इन्फिनिटी, फाइनाइट लेंथ का है, और दिस इज एट एंगल ऑफ अल्फा, दिस इज बीटा, सो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला है, आप गॉस थ्योरम से भी निकाल सकते हो, ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो अगर इसको आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर इंटू एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना 2 का और पाई का, सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो क्यू इंटू 2 अपॉन ये हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आपको हो जाएगा के क्यू अपॉन एल, एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू एल, क्यू बाई एल होगा, तो क्यू बाई एल इक्वल्स टू के हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका टोटल वैल्यू हो जाएगा कितना होगा 2 k लैम्डा अपॉन आर, ये हो गया इलेक्ट्रिक वैल्यू। अब फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स देखो E इंटू क्यू, सिंपल है, सो 2 k लैम्डा अपॉन आर इंटू इलेक्ट्रॉन है,
सॉरी चार्ज है तो क्यू हो गया। अब नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स अंदर को लगेगा, और रिवॉल्व करेगा तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर, इधर लग रहा है फोर्स बिकॉज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा फोर्स। ठीक है, ओके। सो ये क्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया आपका, आर से आर हो गया आपका कैंसिल। सो वी कितना होगा आपका, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2k लेमडा इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एम, ये हो गया। अगर इसको रूट में आप करते हो दिस इज कैंसिल, सो दिस इज वेलोसिटी, सिंपल वेलोसिटी। ठीक है, सो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। सो 2 पाई आर इंटू वेलोसिटी आपका हो जाएगा अंडर रूट, ये ऊपर चला जाएगा तो एम डिवाइडेड बाई 2k लेमडा इंटू क्यू। सो 2k लेमडा क्यू मास एम इंटू 2 पाई आर, 2k लेमडा क्यू एम आर। सो ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। पहले देखो क्या करना है, पहले इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की क्यों इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब ये रिवॉल्व कर रहा है तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, तो वहां से हम निकाल लेंगे क्या, वेलोसिटी। देखो फॉर्मूला तो लर्न हो नहीं पाएगा, ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको लर्न करना है ये तो प्रॉब्लम है। यही क्या है कि आपके पास ट्रिक है, आप तरीका जो भी बोल सकते हो बोलो, तो ये अप्लाई करके यू कैन जस्ट फाइंड आउट द टाइम पीरियड 2 पाई आर। ठीक है, सिंपल है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ये वाली फॉर्मूला टाइम पीरियड का। ठीक है, आप निकाल सकते हो वेरी इजिली। ठीक है, इन द गिवन सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आर एल इज। तो ये देखो वी हैव टू लर्न एंड वी हैव टू रिमेम्बर द थिंग्स लाइक, इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना 0.3 एंड 0.7, V1 ये V2। ठीक है, तो इन दोनों का मिला करके कितना हो जाएगा टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट हो गया। अब इसके पास कितना था, 15 वोल्ट, एक यहाँ पे फिनिश। सो कितना हो गया, -15 प्लस 1 -1.5 2.5 कितना हो गया, 4 किलो ओम इंटू सपोज करंट आई इक्वल्स टू 0। सो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 14 डिवाइडेड बाई 4000, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो सिंपल है, देखो क्या हो रहा है कि ये पोटेंशियल ड्रॉप तो है, सिंपल है, इसमें पोटेंशियल कितना है 15, तो जो रिमेनिंग होगा वो R1 प्लस R2 होगा, सिंपल है, क्योंकि ये तो सीरीज है, दोनों को कंबाइन करके 4 किलो ओम तो लिख ही सकते हैं ना। करंट इज ऑल्सो सेम, सो दिस इज फॉर्मूला फॉर करंट। ना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लोड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या बोलते हैं, V इक्वल्स टू I इंटू R। सो पोटेंशियल V L I 14/4000 इंटू R की वैल्यू 2500 12 12 एंड 0 एक और है। ठीक है, सो 14 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 40, 7 डिवाइडेड बाई 4, 35 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा आप देखो, थ्री फाइव डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो जाएगा, 8.7। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन आया है वो लूप लॉ से, किरचॉफ का जो लूप लॉ है कि समेशन ऑफ ऑल द
पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू किसके होता है? बैटरी, ईएमएफ ऑफ द बैटरी. If the 3 moles of the monoatomic gas, 3 moles of, so N1 यहाँ पे लिख लो, N1 इक्वल्स टू 3 मोल. मोनोएटॉमिक में F की वैल्यू कितनी होती है? 5. यस. N2 इक्वल्स टू 2. F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6. और सॉरी, मोनोटॉमिक में आपका हो जाता है 3, इसमें हो जाता है आपका 5. सॉरी, ठीक है, 3 और 5. And we know the formula. We have to adiabatic exponent of the, so gamma of mixture equals to gamma को Cp of mixture upon Cv of mixture, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग. So Cp की वैल्यू क्या होती है? Cp for mixture equals to N1 Cp1 plus N2 Cp2 upon N1 plus N2. ठीक है, अब देख लो एक फॉर्मूला और. सो Cv इक्वल्स टू F/2R. सो F की वैल्यू कितनी है फर्स्ट के लिए? N1 के लिए 3/2R. तो Cp है, तो ये Cp कितना होगा? Cp माइनस Cv बराबर R. Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R. सो R प्लस कितना हो जाएगा? Cv की वैल्यू आपका हो जाएगा 3/2. तो 3/2 और प्लस 1 5/2, 5/2R. ये हो गया मोनोएटॉमिक के लिए. अब डायटोमिक के लिए देख लेते हैं. सो Cv इक्वल्स टू F 5/2R. सो ये हो जाएगा Cp जो हो जाएगा आपका 7/2R. सिंपल. ये मोनो के लिए, ये डाया के लिए. अब देख लो, सिंपल है. यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा आपका. Cp मिक्सचर इक्वल्स टू N1 3 इंटू Cp1 मोनोएटॉमिक के लिए 5/2R प्लस N2 2 Cp 7/2 इंटू R डिवाइड N1 अपॉन N2 कितना हो जाएगा? 5. अब देखो R कॉमन ले, वो R/2 कॉमन ले लो. R/2 तो कितना हो जाएगा? R/2 को 15 प्लस ये कितना हो जाएगा? R/2 14 डिवाइडेड बाई 5. ठीक है, सो 40 29/10, 29/10R. Cv ऑफ मिक्सचर इक्वल्स टू 3 इंटू कितना हो जाएगा? पहले का 3/2R प्लस 2 इंटू 5/2R डिवाइडेड बाई 5. सो R/2 कॉमन ले लोगे आप, कितना हो जाएगा? R/2 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5. तो आपका हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाई R, 19 डिवाइडेड बाई 10. अब सिंपल है, गामा की वैल्यू निकालो. कितना हो जाएगा? Cp 29 डिवाइडेड बाई 10R अपॉन 19 डिवाइडेड बाई 10R. R से R कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 29 डिवाइडेड बाई 19 कितना हो जाएगा? वन टाइम तो होगा ही होगा. 29 से करोगे 10 हो जाएगा आपका, और पॉइंट लगाओगे 0. सो नियर अबाउट आपका थर्ड जो होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा. ठीक है, ओके. 3 blocks A, B, C are pulled on a horizontal smooth surface by a force of 80 Newton है. ठीक है, वी हैव लिमिटेड टाइम, तो थोड़ा सा फास्ट करते हैं. ये इसको पूरा को सिस्टम मान लो. Assume
दीज आर ऑल सिस्टम्स, बिकॉज अगर स्ट्रिंग है, रोप है, तो उसमें क्या होता है, इनएक्सटेंसिबल होता है, तो सबका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सेम। सो सिस्टम का एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन टोटल मास, फोर्स कितना है आपका 80 डिवाइडेड बाय मास कितना है 2 3 5 10, सो कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबका एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सबका सेम होगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि T2 की वैल्यू कितनी होगी, T2 और T1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जब T2 की वैल्यू फाइंड आउट करना, इन दोनों को सिस्टम मान लो, बिकॉज इस फोर्स की वजह से ये दोनों मूव कर रहे हैं। सो T2 फोर्स इक्वल्स टू मास 8 इंटू एक्सेलरेशन 8, 64। और जब T1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 8 इंटू 5, 40। सो 40 इंटू 64 ऑप्शन है। अब देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल है लॉजिक। ये हो गया आपका T2, ये हो गया आपका T1, और फ्री बॉडी डायग्राम करोगे तो ये हो गया T1, ये हो गया मास 5, ये हो गया आपका 3। सो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स T1 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 40। अब इसमें T2 माइनस 40 करोगे इक्वल्स टू 3 इंटू 8, तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T2 इक्वल्स टू 40 64। सिंपल है, ठीक है। When the potential difference V applied across a wire of resistance R, एक कोई वायर है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस R है, इट डिसिपेट एनर्जी एट द रेट ऑफ W। ये बैटरी हमारी छोटी सी हो गई, ये V हो गया। सो पावर इक्वल्स टू यहाँ पे कितना दिया है, वी नो दैट पावर P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। सो W इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो व्हेन दोनों को कट कर दिया गया, half into half, the wire is cut into two small halves, two half, and these half are connected mutually parallel to a, तो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया इसको। एंड नाउ द बैटरी इज सेम, बैटरी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो बैटरी सेम R अपॉन 2, R अपॉन 2। सो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R बाई 2 का मिल R हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 अपॉन R, तो हो जाएगा आपका R हो गया आपका कॉमन 4। सो R इक्विवेलेंट 1 अपॉन R, सो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा R बाई 4। सिंपल है। अब पावर V डैश इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R इक्विवेलेंट, V की वैल्यू सेम है V स्क्वायर, R की वैल्यू कितना है, R का वैल्यू R अपॉन 4, सो दैट इज, इसको कैंसिल करोगे तो 4 बाई R हो जाएगा। सो V डब्ल्यू डैश इक्वल्स टू 4 इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू क्या थी, डब्ल्यू। सो डब्ल्यू डैश इक्वल्स टू 4 इंटू डब्ल्यू, तो कितना हो जाएगा 4W। ठीक, सिंपल है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आंसर मैच नहीं हो रहा था, तो ये हम थोड़ा लास्ट में देखते हैं एक बार को, ठीक है। अ प्रोजेक्टाइल A and B are thrown at an angle of 45 and 60 with vertical respectively from the top of the 400-meter high tower. If their range and the time of the flight are same, then the ratio of the speed of the project V। अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ से दो प्रोजेक्ट किया 1 and 2, सपोज 1 इज 45 डिग्री पे कौन है आपका A is 45 and B is 60, B is 60, ठीक, सिंपल। सो वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे लिख लेते हैं, वी ए इक्वल्स टू वर्टिकल वेलोसिटी, वी ए cos of 45 वर्टिकल वेलोसिटी एंड वी बी cos of 60। हॉरिजेंटल की बात करते हैं तो वी ए साइन 45, वी बी साइन 60, ठीक है।
अगर हम वर्टिकली इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो एस डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सारे वेक्टर फॉर्म में है। तो ये 400 नीचे जो हाइट है यहाँ से, अगर हाइट की बात, अगर अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हो तो ये बॉडी नीचे जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -400। पहले के लिए यूज करते हैं ए के लिए 400, यू वी की वैल्यू क्या थी इनिशियली, पॉजिटिव डायरेक्शन, सो वी ए cos ऑफ 45 इंटू टी ए, माइनस जी की वैल्यू नेगेटिव है, जी टी ए स्क्वायर। अब सेकंड के लिए भी सेम चीज लिखते हैं, 400 इक्वल्स टू वी बी cos ऑफ 60 टी बी माइनस जी टी ए स्क्वायर। दोनों का टाइम सेम है तो सब ट्रैक कर दो दोनों को, सो इससे ये कैंसिल, सो वी ए cos ऑफ 45 टी ए माइनस वी बी cos ऑफ 60 टी बी। देखो टाइम सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल्स टू 0, और ये भी कैंसिल हो जाएंगे टी ए टी बी। सो वी ए cos ऑफ 45 इक्वल्स टू वी बी cos ऑफ 60। जब इसको सॉल्व करोगे तो ऑप्शन 4 आपका वी ए अपॉन वी बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, cos 60 1/2, 45 1 अपॉन √2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √2। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। A power transmission line feed input at a input voltage. Voltage input is 2300 volt. Step down transformer with a primary winding. N1 की वैल्यू given है, N1 equals to 3000 ton. The output power is delivered V output equals to 230 volt by the transformer. The current in the primary of the transformer is the current in the primary of the transformer I इनिशियली बोल सकते हैं प्राइमरी 5A, efficiency 90%. The winding of the transformer is made of the copper. The output current देखो पावर, एक मिनट, the efficiency is rate of doing work. So efficiency is output अपॉन क्या होता है, इनपुट। आउटपुट आपका क्या हो जाएगा आप बताओ, आउटपुट हो जाएगा आपका वेलोसिटी आउटपुट इनटू करंट आउटपुट, सॉरी वोल्टेज इनिशियल इनटू आई इनिशियल, वोल्टेज 230 इंटू आउटपुट अपॉन 2300 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 5, एफिशिएंसी 90 डिवाइडेड बाय 100, दैट मीन्स 9/10 1 1। सो इससे ये कैंसिल करोगे तो ये 10 हो जाएगा, 1/50 इक्वल्स टू 9/10, ये हो जाएगा आपका आई आई आउटपुट, ये दोनों कैंसिल हो गया। सो आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 45 एम्पियर, आई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 एम्पियर। A big drop is formed by a coalescing of the 100, means combining of the 1000 small, छोटे छोटे कितने हैं 1000, इसका रेडियस सपोज r है, ठीक है। E1 if E1 is the total surface energy of the 100 small water and E2 is the surface energy single। अब E1 जो है एनर्जी है ना,
वो छोटे छोटे 1000 को मल्टीप्लाई कर दो, तो वो जो एनर्जी आएगी वो E1 है। एंड वी नो दैट सरफेस, सपोज सिग्मा को सरफेस टेंशन से डिनोट करते हैं सपोज, सो F बाई, कभी कभी S से भी डिनोट, F बाई L, so F equals to sigma into L. This is the formula of force. But in case of the energy, surface energy, sigma into क्या होता है, एरिया। सिंपल। सो E1 जो एरिया होगा ना, E1 इज 1000 इंटू सिग्मा सरफेस इंटू एरिया, कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबको कंबाइन किया तो सपोज बड़ा सा कोई मिल गया, इसका रेडियस r है। सो E2 की वैल्यू जो हो गया आपका सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दो। सो E1 अपॉन E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 1000 इंटू r अपॉन r का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो मास तो सेम होगा, मास सेम होगा तो 1000 इंटू 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 1, एक सिंगल है, 1 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। सो r, सॉरी, r अपॉन r का होल क्यूब इक्वल टू 1/1000। सो r डिवाइडेड बाई r कितना हो जाएगा, 1/10। सिंपल है। तो 1000 इंटू r अपॉन r का 1/10 होल स्क्वायर, तो 1000 इंटू 1/10 का 1/100, 1212 कितना हो जाएगा 10। E1 अपॉन E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E1 अपॉन E2 की वैल्यू हो जाएगी 10। बहुत सारे फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला, वी डोंट नीड टू मेमोराइज ऑल द फॉर्मूला। ओके। एक ट्रिक यहाँ पे ये है कि फोर्स आपका ये गिवन है, तो एरिया, सॉरी, एनर्जी आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये एनर्जी सिग्मा इंटू ए एंड सिग्मा इंटू एल। सिर्फ ये वाला फॉर्मूला आप लर्न करो, बाकी सब सिंपल है, अप्लाई करो। ठीक है। टू डिस्क ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 I2। I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू गिवन है 4 यूनिट ऑलरेडी गिवन। सो I2 की वैल्यू कितनी है 2। अबाउट द एक्सिस एंड नॉर्मल टू देयर प्लेन रोटेटिंग विद, अब इसका देखो ω1 कितना है 10, ω2 कितना है आपका 4। रेस्पेक्टिवली आर द ब्रॉट इनटू द कॉन्टेक्ट फेस टू फेस with axis of rotation coincident the loss of kinetic energy of the system। पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ I ओमेगा स्क्वायर प्लस I1 ω1 हाफ I ओमेगा 2 स्क्वायर। सो हाफ कॉमन अगर लेते हो तो I की वैल्यू 4 इंटू ओमेगा 100 प्लस I की वैल्यू 216। सिंपल है। तो आपका हो जाएगा 400 प्लस 32, 432 डिवाइडेड बाई 2, सो 216। ये आपका क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये आपका क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब देखो क्या होगा व्हेन दिस कंबाइन एंड फॉर्म अ वन सिंगल वन, तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो I1 प्लस I2 14 फाइनल वाला। मोमेंटम जो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल torque is applied, like we know कि tau equals to I into omega, this is momentum। तो ये अगर आपका जीरो होता है तो चेंज इन मोमेंट, लीनियर मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। सो L1 I L फाइनल,
इनिशियल कितना था, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2, फाइनल I इंटू ओमेगा। I1 की वैल्यू हो गई आपकी 4 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 4, दैट इज 14 इंटू ओमेगा। तो ये हो गया 40 प्लस 48 डिवाइडेड 14 ओमेगा। तो कितना आपका हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 7, 24 डिवाइडेड बाई 7। अब एनर्जी निकाल सकते हैं, वेरी इजी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कितना हो गया, जस्ट 1 मिनट, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। I4, I1 ओमेगा 1 10 प्लस I2 2 ओमेगा 2 4, 8 40 48, 48 डिवाइडेड बाय I की वैल्यू 6 6, 8। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, फाइनल ओमेगा की वैल्यू 8, ओमेगा की वैल्यू 8 64, 7 7 इंटू 64 कितना हो जाएगा, 8 2 7 इंटू 4 28 इंटू 2, सो 7 इंटू 6 42 इंटू 2 4, सॉरी 44। लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, initial is 216 and half I की वैल्यू 6, सॉरी एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, सो हाफ I की वैल्यू 6 ओमेगा स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64, सो 3 कितना हो जाएगा आपका, 2 192। सो लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा E की वैल्यू, लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो गया आपका, 216 माइनस 192, सो 24 24 आपका लॉस ऑफ एनर्जी हो गया। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, द करंट ऑफ 5 एम्पियर I equals to 5 एम्पियर, loop of the side is 1 meter, side is 1 meter 1 meter 1 meter and 1 meter। तो इसको आप the magnetic field at the center of the loop is, find the x, and we know suppose this is alpha, this is beta, तो एक फॉर्मूला आपको मिलेगा, ठीक है, b इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 करते हो तो ये फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, म्यू नॉट I अपॉन, 1 मिनट, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r, 4 पाई r इंटू 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2, बिकॉज 45 45 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, तो कितना आपका हो जाएगा, ओनली रूट 2। समझ में आई बात, दिस इज बिकॉज ऑफ द 1 वायर। अगर 4 वायर है तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,
तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻7 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 5 इंटू √2 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू कितनी है, ये जो साइड है आपका कितना है आप बताओ, आपका ये वाली जो लेंथ है 1 मीटर है, सिंपल। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, हाफ होगी, ठीक। सो आई की वैल्यू हो गई 5 √2, 4 पाई का वैल्यू हो गया 10⁻7, आर की वैल्यू 1/2 इंटू 4 टाइम। तो आप देखो यहाँ पर कितना आपका हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 इंटू 5 इंटू √2 इंटू 10⁻⁻7। सो 40 √2 इंटू 10⁻⁻7। सो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 40। इसमें कोई डाउट है? सो this is the end of the session. Okay. We will meet in the next class. Thank you so much.